So once again, good morning to all and welcome to the third lecture. In this lecture, we will discuss transmission modes and line configuration. तो ये एक्चुअली जब हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क, तो ट्रांसमिशन मोड हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था. तो एज आई टोल्ड यू, we have a dedicated lecture on this transmission mode and line configuration. So let's start the discussion with the transmission mode first of all. So transmission basically defines the direction of the flow of information between two communicating devices. तो ये जो आपका ट्रांसमिशन मोड है, इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ये आपको ये बताएगा, ये डिफाइन करेगा कि इंफॉर्मेशन जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन मोड डिफाइन करेगा कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा. Will it be from source to destination only, or it will be from source to destination or at the different times or at the same time? So there are basically three types of transmission modes: simplex, half duplex, and full duplex. So this is our number one: simplex, half duplex, and full duplex. In simplex mode, the information transmitted only in one direction, that is from source to destination. So it means in simplex mode of transmission, the two communicating devices, one will be the sender only and the other will be the receiver only. तो suppose कीजिए अब दो devices आपस में communicate कर रहे हैं and the transmission mode is simplex mode. So in simplex mode, what will happen? The information will flow in one direction only. Now suppose this is machine number 1, this is machine number 2. So if the mode is simplex, the transmission mode is simplex, the information will flow in one direction only. So it means machine number 1 will be sender always, and the machine number 2 will be receiver always. So information cannot be transmitted back from machine number 2 to machine number 1. Simplex mode, only one direction is possible. Either a machine will be sender or a machine will be a receiver. So the examples of simplex mode of communication are keyboard. So the keyboard is used to enter the data. Now you cannot see the output on the keyboard. And the other example is loudspeaker. Now loudspeaker, the information is transmitted only in one direction from the loudspeaker to the audience only. The audience cannot send back the information through the loudspeaker. And the fire alarm is again the example of the simplex mode of communication. So and your radio communication, FM radio is another example of the simplex mode. In radio also, the communication is transmitted only in one direction. So in FM radio also, in the case of FM radio also, the information is transmitted only in one direction from radio station to the receivers. जैसे आप FM सुनते ही होंगे, उसमें जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है तो the communication happens only in one direction from radio station to the receivers only. अब वहां से आवाज आती है हेलो जलंधर, तो वो आप सभी तक पहुंच जाती है if you have tuned your radio on that certain frequency. लेकिन अगर आप आंसर करो गुड मॉर्निंग क्या, तो वो वापस चली जाती है रेडियो स्टेशन पे? नहीं, because the FM radio is the example of the simplex mode of communication. In simplex mode, the information flows only in one direction between two communicating devices. The second type of the communication transmission mode is half duplex. So in half duplex, the information is transmitted in both the direction, but only in one direction at a time.
So अब इस केस में क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स में it is possible that the sender and the receiver, they both can transmit the data to each other. Means A can send the data to B and B can also send the data to A. Now information will flow in both of the direction between communicating devices, but only in one direction at a time. So it means either the system A will be able to transmit the data at time t1, or the machine B will be able to transmit the data to A at time t1. So मतलब communication दोनों direction में होगी. The flow of information can happen in both of the direction, but only one at a time. One at a time. For example, now in this example, A can transmit the data to B and B can also transmit the data to A. अब ये दोनों चीजें पॉसिबल है, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अब कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में दोनों तरफ से पॉसिबल है, बट only one direction at a time. So it means at time t1, either the A will transmit the data to B or the B will transmit the data to A. At time t2, now let's mark this, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं. तो टाइम t1 पे ये था. Now suppose टाइम t2 पे अब कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में पॉसिबल है, but only one direction at a time. So at time t1, A is sending the data to B. At the same time t1, B cannot send the data to A, but B can send the data to A at some other time. So at time t1, A is sending the data to B, and at time t2, B is sending the data to A. This type of transmission mode is called half duplex. Means the flow of the information in a both direction is possible, but only one direction at a time. So at time t1, E is transmitting the data to B, and at time t2, B is transmitting the data to A. Now, the example of half duplex communication is walkie-talkie. तो उसमें होता है ना, वॉकी टॉकी आपने कभी देखा होगा, प्रेस टू स्पीक एंड रिलीज टू लिसन. उसमें एक होल्ड बटन सा होता है, एक पुश बटन होता है बेसिकली. अगर आप उस बटन को प्रेस कर देते हो तो यू कैन टॉक. तो अगर आप उसको रिलीज कर देते हो यू कैन ओनली लिसन. बट आइदर यू कैन स्पीक और यू कैन लिसन एट द सेम टाइम. सो वॉकी टॉकी इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स. Means the direction, the flow of communication can happen in both the direction between two communicating devices, but only one direction at a time. The third transmission mode is full duplex. तो अब आप I hope कि आपने थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि in full duplex the flow of information can happen to both the direction between communicating devices at the same time. अब आपके दो जो communicating devices हैं उनमें same time पे आप information भेज सकते हो, communication possible है, और वो भी simultaneously. So it means A can transmit the data to B and B can transmit the data to A, that too on the same time. Now, can you tell me the example of the full duplex communication transmission mode? Mobile telephone. Mobile phone. बिल्कुल सही. The mobile phones are the example of the full duplex communication. So the information can be transmitted from the source to destination and destination to source, and that too at the same time. आई होप आपको क्लियर हो गया फुल डुप्लेक्स. अब इसमें जो टेक्निकली चीजें क्या होती हैं उसमें थोड़ा सा देखने वाली चीज ये है कि दरअसल हम चैनल यूज करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में हमेशा ना. तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए टू ट्रांसमिट द डेटा वी विल बी हैविंग अ चैनल बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस.
या ये मान के चलो कि हमने दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया बाय यूजिंग अ केबल। ठीक हो गया जी। तो हम केबल हमने यूज की फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स। अब उसमें हमने डेटा भेजना है। तो अब डेटा जो भेज रहे हैं ऑब्वियसली इट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्टेज, और वो जो वोल्टेज होगी दैट विल बी ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। उसके लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं चैनल। तो मान लीजिए हम जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 5 मेगाहर्ट्ज। तो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंटायर 5 मेगाहर्ट्ज इज बेसिकली यूज्ड बाय द सेंडर ओनली। रिसीवर के लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है दैट इज अलॉटेड टू द सेंडर। ठीक हो गया जी। तो मींस अब आपके पास जो ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज, 0 to 5, टोटल 5 मेगाहर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपने देखा ही होगा एफएम रेडियो पे, जितना आपका एफएम रेडियो है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने फ्रीक्वेंसी एलोकेट की है दैट इज 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। तो आपके जितने भी एफएम चैनल होंगे इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में होंगे। कभी आपने ध्यान दिया है? यस सर। Yes, sir. आप होता है मुझे सर। बताइए, सभी स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी एफएम रेडियो तो सुना ही होगा। यस Yes, सर। sir. यस स्टूडेंट है जिसने कभी एफएम रेडियो सुना ही ना हो? हाँ जी बताइए प्लीज, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी रेडियो ना सुना हो या जिसको रेडियो का पता ना हो, एफएम रेडियो का। तो आई होप सभी ने सुना है ना। तो उसमें क्या होता है, आप रेडियो को ऑन करते हो, उसके बाद अपने रेडियो को ट्यून करते हो फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी को आप सुनना चाहते हो। तो एफएम के लिए, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। Frequency modulation. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, कैसे काम करती है, ये हमारे आगे टॉपिक्स में आ जाएगा पूरा डिटेल में। तो आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली हर चैनल को एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और एफएम के लिए जो गवर्नमेंट ने फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 88 to 108। तो हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 98.2, 94.7। तो आप जिस रेडियो चैनल को सुनना चाहते हो अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उस पे सेट कर देते हो। तो इसी तरह से सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, दे ऑपरेट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अब जो हमने जो एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल में द सेंडर एंड रिसीवर दे आर यूजिंग द 5 मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है जी। तो इस फ्रीक्वेंसी में सेंडर, इन सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन द फ्रीक्वेंसी इज एलोकेटेड टू द सेंडर ओनली। रिसीवर को कोई फ्रीक्वेंसी एलोकेट नहीं होती। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड ही नहीं है तो वो बेचारा ट्रांसमिट कैसे करेगा, वो तो सिर्फ सुन सकता है। दिस इज सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया कि आपके जो सेंडर और रिसीवर हैं दोनों को हमने 5-5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी। ठीक है जी, 5 इसको दे दिए और 5 इसको दे दिए, एंड द फ्रीक्वेंसी इज सेम 0 to 5। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। यही हो गया ना, हमने सेम फ्रीक्वेंसी दो डिवाइसेस को एलोकेट कर दी। मान लीजिए अब मेरे पास एक पेन था, तो मैंने वो सिर्फ प्रिया को दे दिया। तो अब प्रिया लिख रही है, आरुषि और प्रिया दोनों ने एग्जाम करना है, तो मैंने प्रिया को दे दिया ये पेन, ये लो पेन, ये आपका पेन है। तो अब होगा क्या, क्योंकि पेन इज एक सिंगल वो आइटम है आपके पास, तो मैंने वो एलोकेट कर दी प्रिया को, तो प्रिया लिखती जाएगी, आरुषि को चांस नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो मेरी 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी मैंने वो एलोकेट कर दी मशीन नंबर 1 को। तो इट मींस सिर्फ मशीन नंबर 1 ही उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकती है। तो वो फ्रीक्वेंसी को यूज करती है टू ट्रांसमिट द डेटा। अब रिसीवर के पास कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके चीजें उस फ्रीक्वेंसी से जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको कैच कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात करी एफएम रेडियो की। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ, हमने सेम फ्रीक्वेंसी मतलब 0 to 5 मशीन नंबर 1 को भी दे दी और मशीन नंबर 2 को भी दे दी।
तो अब मैंने पेन था, मैंने अब प्रिया को बोला ये पेन आपका भी है और आरुषि का भी है, अब पेन सेम है, तो अब क्या दोनों सेम टाइम पे लिख सकते हो? No. अब सपोज कीजिए पहले प्रिया लिख रही है, जब प्रिया ने लिखना बंद किया तो उसने आरुषि को वो पेन पकड़ा दिया, फिर आरुषि ने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो अब हाफ डुप्लेक्स के केस में ऐसा ही हो रहा है. यू हैव allocated the same frequency to two devices. Either the machine number 1 will be able to use that frequency or the machine number 2 will be able to use that frequency for transmission. क्लियर हो गया जी? और फुल डुप्लेक्स में क्या हुआ, अब हम पूरे चैनल को कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे. क्या करेंगे हम? उस 5 फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, 2.5, 0 to 2.4 हम एक को दे देंगे और 0 to 2.4.9 हम दूसरी मशीन को दे देंगे. तो अब दोनों के पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो दे कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द Same time. सेम टाइम. ठीक हो गया जी? Yes, sir. सो बेसिकली फुल डुप्लेक्स में हम अपने चैनल की जो चैनल कैपेसिटी है उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करते हैं, किसी और में हम कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करते. ऑब्वियसली इसके लिए हमें एडवांस डिवाइसेस चाहिए जिनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है ना? आप देखिए ना, आप एफएम रेडियो बाय करते हो तो कितने का आ जाता है एफएम रेडियो? A normal FM radio can be bought at the price of 500 700 maximum, है ना? है ना? अब वॉकी टॉकी लेने जाओ वो इससे महंगा होगा, मोबाइल फोन लेने जाओ वो इससे भी महंगा होगा, क्योंकि दोनों में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ट्रांसमिशन मोड की वो बिल्कुल डिफरेंट है. Simplex means only one direction from source to destination. Half duplex means the flow of the information can happen in both the direction but at only one direction at a time. And full duplex means the flow of communication can happen from source to destination, yeah, between two communicating devices at the same time. So this is called full duplex. So that concludes our transmission mode. The next is line configuration. So line configuration means how the communicating devices are connected to the communication link. ठीक है जी? Now, what is communication link? The transmission media that connects the computing devices with each other. तो अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन ये डिफाइन करती है कि जो डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, वो उस लाइन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, वो ट्रांसमिशन मीडिया के साथ, कम्युनिकेशन लाइन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं. दैट इज कॉल्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन. एंड द लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट. ठीक है जी? सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मींस how the devices are connected to the communication line. अब suppose कीजिए these are the devices. ठीक है जी? अब ये है communication. अब ये जो उनको connect कर रही है, जिसके थ्रू वो सारा communication कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम communication link या transmission media. तो अब configuration, line configuration, it defines how the devices are connected to the communication line. So line configuration can be of two types, point to point and multi point. Clear हुआ सभी को? Yes, sir. मेरी आवाज वगैरह तो नहीं क्रैक हो रही कुछ या कोई No, और? sir. No, sir. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है. विशाली, अभिषेक जी, अभिषेक चौधरी जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी सर. गुड गुड गुड. अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज लेट मी नो. तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन की हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कम्युनिकेशन लाइन इज कॉल्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट. नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लाइन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. So in point to point line configuration, the communicating devices have a dedicated link between them to transfer the data, as you can observe in the figure. So two communicating devices have the dedicated link.
अब जो अगर आप कोई एक स्पेशल लिंक यूज करते हो, है ना, दो डिवाइसेस के बीच में, तो उसको हम बोल देते हैं डेडिकेटेड. So we have a dedicated communication line between the connected computers. So this type of line configuration is called point to point. तो अगर सपोज कीजिए आपके नेटवर्क में 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, मान लीजिए 5 कंप्यूटर्स हैं, तो फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो पॉइंट टू पॉइंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कोई बता सकता है कि कैसा होगा स्ट्रक्चर? So let's number these machines as 1, 2, 3, 4 and 5. तो अब कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि हमने बात करी है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, you have a dedicated link between the communicating devices. It means अब मशीन नंबर 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो उसके लिए डेडिकेटेड लिंक होगा, 3 के लिए डेडिकेटेड लिंक होगा, 4 के लिए डेडिकेटेड लिंक होगा, 5 के लिए डेडिकेटेड लिंक होगा. इसी तरह बाकी मशीन्स भी ऐसी ही होंगी. ठीक हो गया जी. सो यू विल बी हैविंग dedicated links between the connected computers. This type of configuration is called point to point. So where you have a dedicated link point to point, to every communicating device you have a dedicated link. तो obviously अब इसमें बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स में, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स में बहुत सारे कनेक्शंस होंगे between the individual pairs of the machines, and there will be multiple paths that can be followed from source to destination. ठीक हो गया जी, क्लियर हुआ जी. पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मींस you will be having a dedicated line between the connected computers, between the communicating computers. अब इसका फायदा क्या है? पॉइंट टू पॉइंट फास्ट है, रिलायबल है, और डिसएडवांटेज क्या है? आपको क्या डिसएडवांटेज लगी इसकी? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कनेक्शंस ज्यादा होने कॉम्प्लेक्स है की वजह और से. हाँ कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट, because you are using the multiple communication lines to connect the multiple computers. जी. तो configuration complexity increase हो जाएगी और cost बहुत ज्यादा increase हो जाएगी. लेकिन benefit क्या है? Communication Fast. बहुत ही Fast fast हो रही होगी है. और security क्योंकि आप एक ही dedicated line को use कर रहे हो for the communication purposes. And the second type of configuration line configuration is called multi-point. In multi-point configuration, line configuration, multiple computing devices are connected to the single communication link. अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं. लेट्स नंबर देम एज 1 2 3 4 and they are connected to the same link. ठीक हो गया जी. Now this link is shared by all the connected computers. So अब इसको हम बोलेंगे shared link. वहां पे dedicated link था, अब यहाँ पे कैसा लिंक है? Shared. So now in multi-point configuration, a single transmission line, a single transmission media, a single communication line is shared by the multiple computers. तो अब पॉइंट ये है कि इसका फायदा क्या है? कॉस्ट कम हो जाएगी. हाँ, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी. और डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड स्लो हो जाएगी. स्पीड स्लो हो जाएगी और आपको बहुत सारे और मैकेनिज्म यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब कम्युनिकेशन लाइन शेयर्ड होती है बिटवीन द मल्टीपल कंप्यूटर्स, ओनली वन कंप्यूटर विल बी एबल टू ट्रांसमिट एट गिवन टाइम. टाइम t1 पे सिर्फ एक मशीन ही सेंड कर सकती है, क्योंकि द ट्रांसमिशन लाइन इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल कंप्यूटर्स. जैसे अब हम यहाँ पे हम सेम इंटरफेस को शेयर कर रहे हैं जूम को,
अगर मैं एक टाइम पे या आप बोलोगे या मैं बोलूंगा, बिकॉज वी आर शेयरिंग द सेम मीडियम। ठीक है जी, ये जो मीटिंग रूम है हमारा, है ना, वर्चुअल मीटिंग रूम है जो, उसको हम सभी शेयर कर रहे हैं। तो जब हम सभी शेयर कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही जो ह्यूमन बीइंग है, इट कैन ट्रांसमिट द सिग्नल। अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा जो हम लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या दिक्कत होगी? कुछ भी क्लियर नहीं होगा, नॉइज। हाँ, वहां किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वॉइस एरर। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, इफ द मल्टीपल कंप्यूटर्स आर शेयरिंग द सेम कम्युनिकेशन लिंक एंड द टू कंप्यूटर्स विल ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम, क्योंकि भेजना तो इसी ने भी इसी लिंक में है और इसने भी इसी लिंक में भेजना है। अगर दोनों मशीन सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर देंगी, किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? कोलिजन। और जब कोलिजन होएगा, इंटायर डेटा विल बी लॉस्ट। तो अब आपको बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म यूज करने पड़ेंगे जिससे आप इस चीज को या तो अवॉइड करो या होने के बाद डिटेक्ट करो और उसे फिर ठीक करो। अब लेकिन कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि आपके ये सारे जो सिस्टम्स हैं आपको उतने कॉस्टली नहीं पड़ेंगे जितने डेडिकेटेड लिंक, क्योंकि इंटरनेट जैसी नो इंटरनेट जैसी चीज पे, इतने बड़े नेटवर्क पे यू कैन नॉट हैव अ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब एक कंप्यूटर तो करोड़ों कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो इट मींस अगर आप चाहो भी तो आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, वर्चुअली यूज कर सकते हो लेकिन फिजिकली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली तो आप एक ही लाइन के साथ कनेक्टेड होगे। अब दुनिया में अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है फिजिकली, तो आप करोड़ कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको 1 करोड़ लाइंस चाहिए, और लाइन की देखो डिस्टेंस भी कितना होगा। और मोर ओवर इतने आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड लगाने पड़ेंगे, तो आपका कंप्यूटर है जो वो पूरे द्वापर कॉलेज में फिट नहीं होगा, एक कंप्यूटर। सो ये नहीं बात कि पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ कॉस्टली है, लेकिन इंटरनेट जैसे सिनेरियो में इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वहां पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बचता है वो बचता है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो लेकिन मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की अपनी डिसएडवांटेजेस हैं उसमें, क्योंकि मीडियम इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो आपको ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बैंडविड्थ जो होगी वो शेयर्ड होगी, है ना। तो ऐसे नेटवर्क्स को हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ जी? नाउ लेट्स डिस्कस some more specifications of the this multi point line configuration। देखिए, मल्टी ड्रॉप भी इसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी इसको बोलते हैं, एंड द पैकेट सेंट बाय, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है? वन टू ऑल, यही होता है ना, वन टू ऑल। यस सर। तो वन टू ऑल में अगर आप चाहे यहाँ पे, जैसे फॉर पिछली एग्जांपल में हमने मेन फ्रेम ने डेटा भेजना है, लेट्स नंबर देम अगेन, चाहे इसने डेटा भेजना है मशीन नंबर 2 को सिर्फ, लेकिन क्योंकि इसकी नेचर है वन टू ऑल, तो ये डेटा जाएगा सभी के पास। ठीक है जी, तो भेजना इसको चाहता था 2 को, तो जाएगा ये सभी के पास। जब ये सभी के पास जाएगा तो वो सभी इंफॉर्मेशन को खोल के देखेंगे कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या वो उनके एड्रेस के साथ मैच कर रहा है। जैसे मेन फ्रेम ने डेटा भेजा था मशीन नंबर 2 के लिए, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? 2। तो ये डेटा जब जाएगा 3 के पास, वो उसको इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि क्या डेस्टिनेशन एड्रेस उसके एड्रेस के साथ मैच करता है, नहीं मैच करता, तो वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। फिर मशीन नंबर 4 देखेगी क्या डेस्टिनेशन एड्रेस उसके एड्रेस के साथ मैच करता है, नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगी। मशीन नंबर 2 पे जाएगा, गया, उसने चेक किया, मैच कर गया, तो इट विल एक्सेप्ट द डेटा। दिस इज हाउ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स वर्क्स। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ऐसे ही काम करते हैं। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? तो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड्स और उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो ही और शी कैन आस्क। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर एक डाउट है, पूछना सीख लीजिए। हाँ जी, गुणवीर जी पूछिए।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ FM ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੁਰਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹਾਂਜੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ 0 to 2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਹਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ ਬਾਈ 2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 2 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 2 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ different channels on different frequencies ठीक है जी ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ हाँ जी ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ आई होप क्लियर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆरुषि सर ब्रॉडकास्ट जो अभी आपने बताया उसमें हम मल्टीकास्टिंग नहीं यूज कर सकते कर सकते हैं उसमें मल्टीकास्टिंग भी हो सकती है लेकिन दैट इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर ओके सर हाँ फिर से एक आपके पास एक अलग मैकेनिज्म और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए ओके सर आप देख सकते हो जिस नेटवर्क की हमने ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बात करी है लेट मी शो यू वंस अगेन तो यहाँ पे आप कोई खास हार्डवेयर नहीं यूज कर रहे ना आपके पास सिंगल लाइन है बस सभी इसके साथ कनेक्टेड है तो कंट्रोलिंग की कोई चीज आपने ऐड ही नहीं करी अपने नेटवर्क में लेकिन अगर आप यूनिकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग करना चाहते हो ऐसे नेटवर्क में शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक पे तो आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा और उस पे वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा जो आपको इनेबल करेगा कि मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मींस जब सिंगल लाइन इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल कंप्यूटर्स उसमें आप यूनिकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग कर पाओ ओके सर हाँ जी और कोई क्वेश्चन पूछिए प्लीज सर मल्टी पॉइंट में सिक्योरिटी इशू नहीं होता हाँ कुछ सिक्योरिटी इशू होगा 100% है प्रिया सिक्योरिटी इश्यूज तो रहेंगे मल्टीकास्टिंग मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि आपका डेटा जो एक सिंगल लाइन है उसी पे सभी डेटा भेज रहे हैं तो अब ऐसा मान के चलो कि एक ही लाइन है जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे मल्टीपल सिग्नल जा रहा है लेकिन कोई अगर शातिर बंदा बैठा हो तो वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच करके तो उसका डेटा जो है वो देख ही सकता है प्रॉब्लम तो रहती है सिक्योरिटी की इसीलिए आप हमेशा इंक्रिप्शन यूज करोगे सिक्योरिटी के लिए ताकि इंफॉर्मेशन जो हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो अगर किसी कोई देख भी ले इंफॉर्मेशन तो उसको पता ही ना चले कि ये है क्या यस हाँ हाँ जी और कुछ पूछिए हाँ जी जसकरण कोई क्वेश्चन कोई डाउट ठीक है ओके 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 हाँ जी हाँ जी और कोई क्वेश्चन होवे तो प्लीज ठीक है आई गेस क्लियर ही है सारे सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन